Alright my dear friends, once the theory part is over, अब शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ द फॉर्मूलाज। ओके, सो द मेजर फॉर्मूलाज आर नाउ गोइंग टू बी डिस्कस्ड। सो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज, so to start off with, सबसे पहले if you can remember, we can start with the formulas with respect to the Ostwald dilution law. तो उसमें we have Ka is equal to alpha square C, फिर दूसरा आएगा Kb is equal to alpha square C, then concentration of H plus is equal to alpha into C, concentration of OH minus is equal to alpha into C. Both of them are going to be the same. Alright. Next one is okay, we have an expression for the percentage alpha. So percentage alpha is equal to alpha into 100. Because percentage is always expressed in terms of 100. Okay. So Ostwald dilution law के basis पे this is what we get. नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें H प्लस साइंस फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द Ke, देन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू C। और इसी प्रकार से अगर हमें OH माइनस साइंस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, यानी Ka Kb एंड कॉन्सेंट्रेशन है तो भी आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज pH। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ the concentration of H plus ions. POH is equal to negative log of concentration of OH minus ions. फिर KW is equal to the concentration of H plus, या फिर हम लोग उसका हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं, and OH minus. Okay. Next is pH plus POH is equal to 14. तो इस तरीके से कन्वर्शन भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर pH मालूम है तो व्हाट विल बी द POH वैल्यू, सो दैट आल्सो कैन बी डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोलिसिस एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी हैव कंसीडर्ड। तीन कंसेप्ट था अगर आपको याद है, आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एंड एज वेल एज लुईस कंसेप्ट। ओके, सो दोस वर ऑल थियरी पार्ट। Okay, so the scales pH and POH and all this stuff that was being done. Okay, pH के basis पे then we found out whether it is acidity, neutrality, okay, and basicity. Okay, all that. Then we discussed about hydrolysis, the various types of salts and etc. etc. Okay, वो हम लोग ने discuss किया। उसके बाद we had discussed in the important points, and that is about buffers. Okay, we have discussed about what exactly the buffers are all about. Then we have discussed about the solubility equilibria and the common ion effect. अब solubility equilibria and buffers में कुछ एक दो है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। When you go into buffers, तो buffers में we have pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. याद है आप लोगों को? यस, हेसेलबर्ग एंड हेंडरसन्स इक्वेशन। उसी तरीके से POH will be equal to pKb plus log of salt upon base. Okay, this is Henderson-Hasselbalch equation. और उसके बाद then we talk about solubility one. तो solubility in terms of moles per liter is equal to solubility in terms of grams per liter divided by molar mass, and that was nothing but grams per mole. Okay, so this was about solubility part. Okay, next is for the various types of salts, the relationship between KSP and S. तो वो consider करेंगे. So KSP is equal to S square. This is for 1:1 type of a salt. फिर था KSP is equal to 4S cube. Okay, this was for 1:2 type of a salt. Next was KSP is equal to 27S raised to 4 for 1:3 type of a salt. Next is KSP is equal to 108 S raised to 5 for a
3:2 या फिर 2:3, whatever it is, ये आप इधर इंटरचेंज कर सकते हो. Okay, the general formula was KSP is equal to x raised to x, y raised to y into s raised to x plus y, जहाँ पर x is nothing but is the number of cation and y will be the number of anion. Okay, तो वो वैल्यूज हम लोग डालते हैं तो इस हिसाब से we get the various answers. So this is the way we get all the different proportions. और फिर आपको कोई भी proportion है, अगर आप ये particular formula में डाल देते हो तो आपको उसका आंसर मिल ही जाता है. ये मैंने आपको कॉमन बताया 1:1, 1:2 या 2:1, ये 3:1 या फिर 3:2. Okay, like that. Okay, so these are some of the important formulas, okay, that you need to remember as far as the chapter of Ionic Equilibria is concerned. Okay, बाकी का जो था वो सब theoretical concepts थे जो मैं ऑलरेडी आपको explain कर चुका हूँ. Alright, I guess यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. Alright, so my dear friends, so we now start with the solving of the numerical problems. मैंने आपको बोला था unsolved numericals में solve करूँगा आप लोग के साथ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला the first category is total 4 questions है दोस्तों इसमें. Okay, first one is choose the most correct answer. दूसरा है and that is going to be answer in one sentence, then answer in brief and answer the following. Okay, ऐसे 4 टाइप के questions है आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद. Okay, तो वो मैं आपसे यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ. तो we start with the first category, choose the most correct answer. उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है न्यूमेरिकल बेस्ड जो questions है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ. Okay, याद रखेगा ये. So the pH of 10⁻⁸ molar HCl is 8, 7, less than 7 and greater than 7. 4 options है. अब एक बात याद रखिएगा कि whenever the concentration of any acid, NaH plus or OH minus is less than 10⁻⁷, then the 10⁻⁷ molar also has to of either H plus or OH minus of water also has to be considered. दोस्तों मैंने आपको बोला था जब मैं थियरी पढ़ा रहा था तभी क्या 298 केल्विन प्योर वाटर में concentration of H plus ions 10⁻⁷ है moles per dm cube. Okay, तो या OH minus whatever it is. Okay, तो अगर जिस कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करने का है, जिसका पीएच फाइंड आउट करने का है, जो एसिड बेस जो भी है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन उस 10⁻⁷ से कम है तो फिर 10⁻⁷ ऑफ H plus और OH minus ions of water also has to be considered. ये कम है देखो 10⁻⁸ is less than 10⁻⁷, you know this. So 10⁻⁷ also has to be taken into consideration. तो देखो कैसे होगा अभी the concentration of H plus ions will be equal to 10⁻⁸ plus 10⁻⁷. ओके, ऐसा आएगा. क्या आएगा 10⁻⁸ plus 10⁻⁷. नेक्स्ट थिंग इज जिस कॉन्सेंट्रेशन का पीएच पूछा है वो कॉन्सेंट्रेशन कॉमन लेने का. ओके, तो दिस विल बी 1 प्लस ये कितना हो जाएगा अभी 10 बिकॉज 10⁻⁸ into 10 मतलब 10⁻1. ओके, विल बी गिव यू 10⁻⁷. समझा? ये आप लोग कॉमन लेके ऐसा कर सकते हो. So that will be equal to nothing but 1 plus 10 is 11. 11 into 10⁻⁸. Okay, ये H plus हो गया. pH is equal to what? Negative log of concentration of H plus ions. So that will be equal to negative log of 11 into 10⁻⁸. तो देखो अभी ये इधर आ जाएगा अभी तो माइनस and माइनस becomes plus. Okay, तो ये 8 हो जाएगा. Okay, minus of because 8 of log 10 is 1. तो 8 into 1 is 1, तो इसलिए ये 8 आएगा माइनस ऑफ log 11. So that is equal to 8 minus of log 11 है तो 1 point something आएगा. So answer will be nothing but 8 minus, देखो exactly 1 होता तो 7 आता था लेकिन 1 point कुछ है यानी it will be 6 point something. ओके, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए. ओके, द मोस्ट करेक्ट आंसर चाहिए अपने को. इसमें से देखने का है 8 नहीं होगा. ओके, यानी डायरेक्टली ऐसा मत करना कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸ ऐसा करके नहीं करने का. इधर बहुत लोग ऐसा करते हैं आंसर इज 8. नहीं, ये याद रखिएगा. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ओके, ये याद रखिएगा. हाँ, अगर 10⁻⁻6 या ऐसा कुछ होता तो फिर डायरेक्टली आंसर वुड हैव बीन 6.
ओके लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ओके डायरेक्टली ऐसा नहीं करने का, नेगेटिव लॉग और 10⁻⁸ मतलब आंसर इज 8। ऐसे भी देखो आप गलत है ना, pH 8 है तो वो एसिड कैसा होगा, वो तो बेस हो जाएगा, और ये तो एसिड है HCl मतलब, ओके इसलिए समझा करो इस बात को, एसिड का हमेशा pH 7 से कम ही होगा, ओके तो 8 नहीं हो सकता, 7 मतलब न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 नहीं, तो इट इज लेस देन 7, ये देखो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, ओके ये मैंने पूरा कैलकुलेशन क्यों बताया, देखो नॉर्मली तो ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, ये एसिड है तो ऑब्वियसली इट इज टू बी लेस देन 7, लेकिन अगर समझो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा कि कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl, तो आप लोग ऐसे समथिंग समथिंग तो नहीं कर सकते, तो आप लोग को भी समथिंग समथिंग मार्क्स मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये पूरा कैलकुलेशन बताया, ओके कैसे करने का ये आप लोग को, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दी आंसर, ओके तो इस तरीके से द आंसर इज लेस देन 7 एंड देयरफॉर द ऑप्शन इज सी, ओके तो मैं वापस से बोलता हूँ, जिस एसिड या बेस का pH फाइंड आउट करने का है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन H+ या OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से कम है, ओके H+ OH- आयन ऑफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁷, तो अगर उससे कम है तो फिर वो 10⁻⁷ को भी हमें कंसीडर करना है इन द कैलकुलेशन, ओके एंड देयर बाय यू हैव टू डू इट। समझा आप लोग को, एवरीबडी क्लियर, वेरी गुड, ओके वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ एंड दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव अ pH वैल्यू इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्तों 1 मतलब क्या, इट इज वेरी वेरी एसिडिक, ओके 7 से जितना कम होगा उतना एसिडिटी ज्यादा होगा, 7 से जितना ज्यादा उतना बेसिसिटी ज्यादा, तो इट इज 1, सो द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखो पहला 50 ml 0.1 मोलर HCl, 50 ml 0.1 मोलर NaOH, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, तो pH विल बी 7, मतलब ये ऑप्शन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज 60 ml 0.1 मोलर HCl, 40 ml 0.1 मोलर NaOH। HCl का वॉल्यूम देखो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम इज स्लाइटली ग्रेटर देन NaOH, 60-40, इतना ज्यादा नहीं है, और मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम pH का 1, ओके 3, 4, 5 ऐसा नहीं चाहिए, 1 चाहिए, इट्स हाईली एसिडिक, ओके यहाँ पर एसिडिक है ये, मतलब इसका भी pH 7 से कम होगा, लेकिन क्या होगा इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी लेस, 60-40, 20 ml 0.1 मोलर HCl एंड 80 ml 0.1 मोलर NaOH, देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन वॉल्यूम देखो NaOH का काफी ज्यादा एज कंपेयर टू एसिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, द सॉल्यूशन इज बेसिक, और अगर बेसिक है तो pH शुड बी ग्रेटर देन 7, ओके यानी ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, अब ये एसिडिक है और ये एसिडिक है, देखो 75 ml 0.2 मोलर HCl, 25 ml 0.2 मोलर NaOH, तो ये दोनों एसिडिक रहेगा B और D, लेकिन उसमें से मुझे क्या चाहिए, pH is 1, so that means that the solution has to be highly acidic, यानी volume of HCl must be much larger as compared to the volume of the base, ओके यानी ये देखो इधर तो सिर्फ 40-60 मतलब 20 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो इट इज 3 टाइम्स डिफरेंस, ये 25 और ये 75 है, सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दिस लुक्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो भी मैं भी इसका कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन इज व्हाट कि द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड वॉल्यूम ऑफ द एसिड माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ द बेस वॉल्यूम ऑफ द बेस अपॉन Va plus Vb. So that is equal to normality of the acid is 0.2 into 75 plus ये भी 0.2 है लेकिन 25 ml है divided by 75 plus 25, so that means it will give you what 100. So 0.2 into 75, okay कितना होगा देखो 75 into 2 होता तो 150 होता, लेकिन ये 0.2 होता, ये 15 हो गया, okay 15, I'm sorry the sign is minus of 25 into 2 50 होता है, लेकिन ये 0.2 है तो ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10, 10 upon 100, so that means it is equal to what 0.1, that is equal to 10 raised to minus 1, so pH is equal to negative log of concentration of H+ ion, so that is equal to negative log of 10 raised to minus 1, so that is equal to minus becomes plus, और ये 1 आएगा, 1 into log of 10 and 1 into log of 10 मतलब log 10 is 1, so 1 आंसर आएगा, और यही चाहिए था अपने को 1, okay, so the option right one is D option, okay, 75 ml of 0.2 molar HCl, 25 ml of 0.2 molar NaOH,
समझ में? एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ये सब सॉल्व नहीं करने का, मैंने जो आपको लॉजिक बताया वैसा कि द एसिड शुड बी मच लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बेस बिकॉज द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक, तो उस हिसाब से कंपैरिजन करने का। आई बात समझ में? तो ये राइट ऑप्शन मिल रहा है आपने को, क्योंकि पहले तो क्या करने का, देखो पहला ऑप्शन और ए और सी ऑप्शन तो गलत ही है बिकॉज ए इज न्यूट्रल एंड सी ऑप्शन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज बेसिक। तो बचा से बी और डी, लेकिन बी में द डिफरेंस इज लेस, so the solution is acidic but it is slightly acidic. I want highly acidic and therefore the option is D. समझ में आई ये कैलकुलेशन एवरीवन? अब दोस्तों चौथे सवाल की तरफ पहुंचते हैं। अंडर द सेम कैटेगरी दैट इज आंसर चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड वाला न्यूमेरिकल नहीं है, ओके, इसलिए आई एम ओनली कंसिडरिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। So fourth one is the solubility product of a sparingly soluble salt AX is 5.2 into 10 raised to minus 13. Its solubility in moles per dm cube is going to be how much? अब देखिए दोस्तों, AX is a 1:1 type of a salt, ठीक है, और मैंने थियरी में पढ़ाया था कि अगर 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है तो KSP will be equal to what? S square. So therefore हम ऐसा बोलेंगे S is equal to under root of KSP, ठीक है, KSP वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, so therefore S will be equal to under root of 5.2 into 10 raised to minus of 13, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट है तो मुझे 10 का पावर को है ना लेके आने का इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा 5.2 आई कैन राइट इट डाउन एज 52 into 10 raised to minus 1. Do you agree with me? 5.2 I can write down as 52 into 10 raised to minus 1, और ये into 10 raised to minus 13 तो है ही, so therefore it is 52 into 10 raised to minus 14 square root of that. इसका मतलब ये हो गया square root of 52 into 10 raised to minus 7, ये 10 raised to minus 14 था, square root है तो उसको बाहर ले लिया तो 10 raised to minus 7। अब 52 का square root अगर आप देखोगे, okay, तो what is going to happen now is कि 7 square is 49 and 8 square is 64, तो ये 52 का जो वैल्यू है वो 49 और 64 के बीच में है, मतलब इट इज बिटवीन 7 and 8, ओके, यानी 7 पॉइंट समथिंग रहेगा इनटू 10 raised to minus 7, ये अपना आंसर है। अभी इसके साथ ये कंपेयर करो, ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी, ओके, 13.5 1.35, अब बचा ये दो 7.2, ओके, लेकिन अभी पावर देखो, एक है 10 raised to minus 7, एक है 10 raised to minus 8, so obviously the answer is 10 raised to minus 7, ओके, क्योंकि 10 raised to minus 14 है, बाहर ले लिया तो 10 raised to minus 7 हो गया, so the right option is A option is right, ओके, यानी हमें पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नाउ डिस्कसिंग व्हाट द एमसीक्यू, ओके, चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ओके, आंसर्स आर ऑलरेडी देयर, सिर्फ आपको उसमें से मोस्ट करेक्ट वो ढूंढने का है। बोले समझाइए आप लोगों को, everyone understood this? We go to the next category now. Question number 2. Answer the following in one sentence. मतलब it's not necessarily it is to be one sentence. Numericals में कैसे one sentence में complete होगा, okay? लेकिन it is title is given like that. तो उसमें question number 4 discuss करेंगे हम कि dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5. Calculate the percent dissociation of acetic acid in 0.01 molar solution. ओके, ये फाइंड आउट कर देगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया यहाँ पर Ka is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, दैट मीन्स मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 10 raised to minus 2 मोलर, और हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन, ओके, परसेंटेज अल्फा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो टू बिगिन विथ ओसो डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से Ka is equal to अल्फा स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के अपॉन सी, सो दैट इज इक्वल टू, सो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी, सो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 raised to minus 5 अपॉन 10 raised to minus 2, सो दैट इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised to minus 3, समझाइए आपको, 10 raised to minus 5 है, ये 10 raised to minus 2 है, तो ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 10 raised to minus 3 आएगा, ओके। अभी स्क्वायर रूट है तो मैं उसको इवन नंबर में क्या कन्वर्ट करूंगा, तो 1.8 आई कैन राइट इट डाउन एज 18 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus of 3, तो मुझे वो मिले देगा
18 इंटू 10⁻⁻⁴ समझा? 18 इंटू 10⁻⁻1 इज व्हाट 1.8, 10⁻³ तो ऑलरेडी है, 10⁻⁻1 10⁻³ gives you what 10⁻⁴, so that is equal to √18 इंटू 10⁻²। ओके, ये 10⁻⁴ को बाहर ले लिया। √18 is nothing but 4.242 इंटू 10⁻², ये मुझे क्या मिल गया? अल्फा। Okay, alpha doesn't have any units because it is the number of moles of the electrolyte undergoing dissociation divided by the total number of moles of the electrolyte present. यानी न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स है, डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स है, एंड देयरफॉर उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये मेरा अल्फा वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों परसेंटेज अल्फा मतलब क्या है? अल्फा इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 4.242 इंटू 10⁻², ये मेरा अल्फा का वैल्यू है, इंटू 100, तो 10⁻² और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? 4.242। ओके, ये आंसर मिल गया मुझे। क्लियर हो गया ये आप लोग को? तो वापस से बता देता हूँ, रिकैप मींस फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? k = α²c, अल्फा फाइंड आउट करना है तो √k/c, तो वो मुझे मिलेगा 4.242 इंटू 10⁻²। लेकिन अगर उसका परसेंटेज अल्फा कैलकुलेट करना है तो मुझे उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा फाइनल आंसर एज 4.242। ओके, बोलो समझ में आई आप लोग को? एवरीबॉडी एनी डाउट्स? ओके, अब हम नंबर 6 पे जाएंगे। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 6.06, कैलकुलेट इट्स H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो pH का वैल्यू है 6.06। फॉर्मूला मालूम होगा आपको, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयंस। ओके, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? अभी नेगेटिव साइन को शिफ्ट करेंगे तो लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू माइनस ऑफ pH। ओके, ये याद रखेंगे। सो देयरफॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय लॉग, तो लॉग और ये लॉग कैंसिल होगा, ये 1/log मतलब एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ pH, so that is equal to anti-log of minus of 6.06। ओके, अब दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप लॉग एंटी लॉग निकालते हो ना, तो यू हैव व्हाट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। मेंटिसा मतलब डेसिमल के बाद होता है, और वो मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी आइदर 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इधर क्या माइनस साइन इधर लिखा है, यानी न केवल ये 6 भी नेगेटिव है, लेकिन ये 0.06 भी नेगेटिव है, तो मुझे फिर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव एंड मेंटिसा पॉजिटिव। तो कैसे करते देखो, मैं आपको बताता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, सो मुझे मिलेगा -6 माइनस 0.06। ओके, ऐसा मिलेगा, ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अभी क्या करना है, -6 माइनस 0.06, अब क्या करूँगा, +1 -1 करूँगा, +1 -1 इज 0 ओनली। ये सब जो भी ऐड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ओके, आप देख लीजिए। ओके, अभी क्या किया है मैंने कि ये -6 है वो -1 के साथ जाएगा, और ये जो -0.06 है वो +1 के साथ जाएगा। आई बात समझ में? हमेशा याद रखें, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद वाला है ना पॉजिटिव चाहिए, यानी जब भी आप स्प्लिट करोगे और डेसिमल के बाद वाला जो नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो +1 के साथ जाएगा, यानी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डेसिमल नंबर्स, यू नो दिस वेरी वेल। ओके, इसलिए मैंने वो ऐसा किया, +1 मैंने वो डेसिमल के बाद वाला लिया, यानी -1 मैंने -6 के साथ लिया। ओके, तो इस तरीके से मुझे अभी क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -6 -1 इज -7, तो अभी मैं 7 इधर -7 के ऊपर ही लिखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव होने वाला है। सो 1 - 0.06 इज नथिंग बट 0.94 आएगा। समझ में आ गया? इट विल गिव यू 0.94। अभी इसका एंटीलॉग निकालो, 0.94 का एंटीलॉग निकालो तो आपको मिलेगा 8710। फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of the characteristic, power of the characteristic कितना, -7, तो ये -7 आ गया। ओके, जब भी आप एंटीलॉग का टेबल देखोगे तो 0.94 आपको 4 डिजिट मिलेगा, 8710। ओके, फिर क्या करो, कोई भी जो भी ऐसे 4 डिजिट वाला मिला तो पहले डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power of the characteristic।
कैरेक्टरिस्टिक कितना है अपना -7, तो ये -7 आया। तो इस तरीके से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोलार लिखो या फिर मोल्स पर dm3 8.710 into 10⁻⁷। बोलो समझाइए आप लोगों को? Everyone understood this? Okay, it's very simple. Only thing is ये वाला पार्ट तरह समझने की कोशिश करो, ये पूरा। Okay, जो भी डेसिमल से स्प्लिट करने के बाद जो मुझे डेसिमल के बाद का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे +1 के साथ लेने का है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये -1 को फिर ये माइनस के साथ लो तो इधर ये नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल इज वेरी इजी। ओके, दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली द कैलकुलेशन पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके ओके दोस्तों, अब हम जाएंगे नंबर 7 पे। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये है। अब दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा एसिड है ओके जहाँ पर देयर आर मोर देन 1 H प्लस, तो थोड़ा सा चेंजेस है वो याद रखना। ना सी concentration of H2SO4 is 0.01 molar, that is equal to 10⁻⁻² molar. Okay, now you need to know the concentration of the H plus ions. So H plus ions is equal to nothing but concentration into the number of H plus ions donated. ये याद रखिएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻² इंटू यहाँ पर H2SO4 है 2H है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मोलर। ओके, ये इतना याद रखो, बाकी तो सब सिंपल ही है, आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है। हाँ, अगर HCl होता तो डायरेक्टली हम लोग 10⁻² लेते थे। ओके, अगर H3PO4 होता तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता। ये H2SO4 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर HNO3 होता तो भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बिकॉज इट हैज कंटेनिंग ओनली 1H। सो नाउ अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव इज फॉर्मूला आप जानते हो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻², सो दैट इज इक्वल टू -2 log of 10 minus log 2, ऐसा है, तो आंसर इज माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 2 इंटू log of 10 is 2 minus of log 2. Okay, so that is equal to 2 minus of log 2 का वैल्यू है 0.3010, so that is equal to 1.6990। ये pH का वैल्यू है, और pH का यूनिट्स कोई नहीं होता है, so we are going to keep it as it is. It is 1.6990। समझ में आई आप लोगों को? So only thing what you have to remember in this case is कि H2SO4 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत लोग नहीं करते, तो क्या आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻² कर देंगे तो आंसर आएगा 2, और फिर वो छोड़ देंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट। इट इज 2 इंटू 10⁻², तो इस तरीके से आंसर विल बिकम 1.6990। बोलो क्लियर हुआ ये आप लोग को? एवरीवन, एनी डाउट्स प्लीज, एनीवन? ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, वी नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन। Calculate the dissociation constant of the acid. Okay, so we start with percentage alpha, मतलब percentage ionization is 5, concentration is decimolar, that is equal to 1/10 molar, that is equal to 0.1 molar, that is equal to nothing but 10⁻⁻1 molar. Okay, ये याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज एक और फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, सो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू परसेंटेज अल्फा अपॉन 100, सो दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 100, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। ओके, ये याद रखिए आप लोग। ओके, अदरवाइज और कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, सिर्फ फॉर्मूला में भी वैल्यूज डाल दो एंड यू गेट द आंसर। सो परसेंटेज अल्फा इज 5, तो अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हम लोग ने, उसको डिवाइड बाय 100 किया, तो 5 इंटू 10⁻², कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर है तो इट इज 10⁻1 मोलर। ठीक है, अब फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, ये K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है -1, सो 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर गिव्स यू 10⁻⁴ इंटू 10⁻1, सो दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁵। और क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का आंसर है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कि ए का कोई यूनिट नहीं है, अल्फा का कोई यूनिट नहीं है, ये याद रखिएगा।
और देखा आप लोगों ने जैसे ये इनिशियल पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द रेस्ट इज वेरी इजी. Okay, so I hope you have understood this very well. Okay, my dear friends, we now going to number 9. pH of a weak monobasic acid is 3.2 in its 0.02 molar solution. Calculate its dissociation constant. ठीक है, ये फाइंड आउट करना. तो डेटा में पहले लिखेंगे pH is equal to 3.2, concentration is 0.02 molar, so that is equal to 2 into 10 raised to minus of 2 molar. ओके, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू सी. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ये याद रखिए आप लोग. तो पहले शुरू करते हैं pH इज इक्वल टू 3.2 से. सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस, ये फॉर्मूला आपको मालूम है. सो देयरफॉर वी से log of H plus multiply both the sides by negative sign, so negative becomes plus and this will become minus of pH. So therefore H plus ion concentration will be equal to divide both the sides by log, तो log cancel हो गया, इधर divide by log करेंगे तो anti log हो जाएगा. So anti log of minus of pH, so that is equal to anti log of minus of 3.2. फिर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है +1 -1 इसको स्प्लिट करने का, यस वह सब करना है यहाँ पर. So minus of 3 minus of 0.2 plus 1 minus 1, अब -3 -1 के साथ जाएगा और -0.2 plus 1 के साथ जाएगा. तो इस हिसाब से we get anti log of, ये हो गया बार 4.8 because -0.2 plus 1 gives you 0.8. So बार 4.8 ये एंटी लॉग है उसका. So that is equal to 6310, ये आता है 4 डिजिट. ओके, 0.8 का जब आप एंटी लॉग निकालते हो तो ये फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इनटू 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज -4. तो ये मिल गया मुझे कॉन्सेंट्रेशन किसका, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल गया. फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ये मुझे C मालूम है, मुझे H प्लस मालूम है, तो K तो पता चल ही जाएगा. तो अभी क्या करेंगे, टेक द स्क्वायर्स ऑफ ऑन बोथ द साइड्स. तो क्या मिलेगा मुझे, H प्लस द होल स्क्वायर is equal to K into C. Okay, because square root of square वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा. So therefore Ka will be equal to concentration of H plus square upon C. So that is equal to 6.310 into 10 raised to minus of 4 the whole square. Give it divided by 2 into 10 raised to minus 2, so that is equal to 19.9 into 10 raised to minus 8 divided by 10 raised to minus 2, so that is equal to 19.9 into 10 raised to minus of 6. Okay, this is going to be the final answer. Okay, 6.310. Okay, that is going to give you the answer as 39.8 divided by 2, the 19.9. 10 raised to minus 8 upon 10 raised to minus 2, that will give you 10 raised to minus 6. और क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा. ओके, नो यूनिट्स एट ऑल. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, देखा जाए तो सिर्फ हमें वो H प्लस कैलकुलेट करना था, इसलिए हम लोग को ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ा. ओके, वंस वी नो दिस देन द डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज डालने का है उसमें एंड यू गेट द फाइनल आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. इन NaOH द सॉल्यूशन, द OH minus ion concentration is 2.87 into 10 raised to minus 4 molar. Calculate the pH of the solution. अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा NaOH बेस है तो pH नहीं POH मिलेगा. ओके, इसलिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी किसका दिया है, OH माइनस का. तो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, POH is equal to minus of log of concentration of OH minus, that is equal to minus of log of concentration of 2.87 into 10 raised to minus of 4. So इसका log निकालेंगे तो minus of log of 10 raised to minus 4 will give you minus becomes plus 4. इनके log 10 का वैल्यू 1 है. Minus of log of 2.87. So that is 4 minus of 0.4579. So 4 minus of 0.4579, and that is going to give you nothing but 3.5421.
Okay, this is what the answer you get, 3.5421. 0.4579 is a log value of 2.87, तो उस हिसाब से करेंगे तो 3.5421 मिलेगा. किसका वैल्यू मिला लेकिन दोस्तों हमें POH का. हमें क्या कैलकुलेट करने का है, pH. So pH plus POH is equal to 14. ये मैंने आपको पढ़ाया था. Okay, the relationship between the pH as well as POH. So अभी pH find out करना है, so that is equal to nothing but 14 minus of POH. So that is equal to 14 minus of 3.5421. Okay, that is what you have to do. So what we get is nothing but 10.4579. Okay, this is what we get. pH will be 10.4579. यानी ये याद रखिएगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि वो pH का ही दिमाग में, तो यहाँ पर सब जगह pH ही करते हैं और आंसर आ जाता है 3.54. ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज देखो ना NaOH है, बेस है, तो बेस का pH 3.54 में हो ही नहीं सकता ना. ओके, इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 7. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. सो प्लीज याद रखिएगा, व्हेनेवर इट्स अ बेस यू विल बी गेटिंग POH, और फिर POH का वैल्यू को pH में कन्वर्ट करो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. इस तरीके से बोलो, समझ में आए आप लोग को? ओके एवरीवन. Okay, my dear friends, under the last category about answer the following, we come to the last numerical of this particular chapter. Okay, and that is the pH of the rainwater collected in a certain region of Maharashtra on a particular day was 5.1. Calculate the H plus ion concentration. Okay, that is what we need to do. So, to begin with, the pH is equal to 5.1. We need to find out the H plus ion concentration. Formula आपको मालूम है, pH is equal to minus of log of H plus multiplying both the sides by negative sign, so we get this minus of pH, divide both the sides of by log, so H plus concentration is equal to antilog of minus of pH, so that is equal to antilog of minus of 5.1. नेक्स्ट इज, आपको ये भी मालूम है अच्छी तरीके से, हमने ये न्यूमेरिकल पहले भी किया है. सो माइनस ऑफ 5 माइनस 0.1 स्प्लिट कर देने का, फिर प्लस 1 एंड माइनस 1, माइनस 5 विल गो विथ माइनस 1 एंड माइनस 0.1 विल गो विथ 1. सो दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 5 माइनस 1 इज बार 6.1 माइनस 0.1 इज 0.9, सो बार 6.9. सो दैट इज इक्वल टू 0.9 का अगर हम लोग एंटी लॉग निकालें तो इट इज गोइंग टू गिव यू 7943 फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल into 10 to the power of the characteristic, so that is 10 raised to minus of 6. Okay, this is what we get in terms of molar. Okay, because H plus ion concentration है, and that's why it has to be in what? Molar. 7.943 into 10 raised to minus of 6. Okay, ये हमें मिल जाएगा. इतना H plus ion concentration है उस बारिश में जहाँ रेन वाटर बोला था, तो उसका pH उसका 5.1 है. So that means it is acidic. एसिड रेन का कंसेप्ट आप लोग ने सुना ही होगा. ओके, सो दैट्स द रीजन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम्स आउट टू बी दिस. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर पार्ट. ओके, एंड दैट्स इट. जैसे मैंने बोला आप लोग को, ओके, देयर विल बी अ ह्यूज स्माइल ऑन योर फेस दैट एट लास्ट यस द चैप्टर इज डन. ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड द एंटायर थियरी पार्ट. फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज दिया है और उसके बाद मैंने अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक सॉल्व किया है. ओके, जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है वो एक बार आप देख लीजिएगा. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ दैट व्हाटएवर न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू आर एबल टू सॉल्व इट. Am I very clear with this? Okay, so thank you so much for being with me for this entire chapter. Okay, God bless you.